Hello and good morning, all of you. I hope everyone is doing fine and well. So, guys, just let me know how many of you are in. फटाफट thumbs up दे दो guys. Okay, so we were doing the chapter photosynthesis in higher plants, and yesterday we started with this chapter. We'll wait for a few minutes so the rest of you join. Okay, I fine guys. So yesterday we had done with um yesterday we had done with the light reaction guys, और आज के क्लास में हमें डार्क रिएक्शन वाले टॉपिक्स देखने थे, करने थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव अ क्रिस्प रिवीजन कि कल के क्लास में हमने क्या क्या देखा था गाइस. उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है डार्क रिएक्शन. हम डार्क रिएक्शन देखेंगे किस तरह से हो रहा है, कौन से साइकिल्स होते हैं डार्क रिएक्शन में, और क्या क्या फैक्टर्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रही है. वेल, दैट्स ऑल. तो शुरू करते हैं. पहली बात तो गाइस, कल हमने जो पढ़ा था, इट वाज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट पार्ट. We saw that there were various experiments which were like we could have considered. जैसे हमने कल देखा था, स्टार्टिंग फ्रॉम हमने हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट देखी थी, देन हमने गाइस वैरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट देखी थी. वी सॉ दैट प्रिस्लीज एक्सपेरिमेंट जिसमें कि अमिंट प्लांट वाज व्हेन इट वाज प्लेस्ड इट रीस्टोर्ड द capacity, or whatever the air quality that was bad, it restored the good air quality. Then we saw Engelmann's experiment, we had seen von Neal's experiment, and like that. So as for now, yesterday we had emphasized mainly on what are light reactions. We emphasized on this topics. ठीक है. Then what we saw in this, we also had seen what is phosphorylation. We had also seen guys what are chemio, what is a chemiosmotic hypothesis. Then in phosphorylation we covered the we had covered the non-cyclic and the cyclic phosphorylation. ठीक है. Then what else did we cover? Then we had done, so we had done more, like we talked about pigments, we talked about reaction center, we talked about the color of the pigments, है ना, the color the pigments imparted, the color the pigments imparted guys, and their movement on a chromatograph paper. That was just a chromatograph sheet. ठीक है. Then we measured the what were the colors that were imparted. Then what else did we do? Just let us see what else did we do. So yeah, after this experiment part we had also seen, see this portion we had covered. Then we had okay, so then we had done the photosystem part guys. So let me take you all one more over here. We had done the photosystem part. Like in photosystem we had talked about PS1 system, we had talked about PS2 system. Okay, so basically how does PS1 and PS2 affect photosynthesis, when they are present, where they are present, whether it is in the PS2 is the one that affects non-cyclic photophosphorylation, and PS1 the one who is affecting only the cyclic photophosphorylation. Okay, fine. So these were the topics instantly sorry, that were covered yesterday.
One more thing, guys, I told you all that after this we will be shifting, or we will be doing the topics of dark reaction. So if you could see this slide, in this slide I had told you about what is PS2 system, what is PS1 system, how PS2 works, how PS1 works, which was the one that was discovered first, and which is the one that functions initially, and which is the one that functions later. So overall, if we talk about and what were the, even what were the location, guys, where is PS2 located, where is PS1 located? If you see, PS2 is located, I already told you, in the oppressed region, whereas the PS1 is located both in the oppressed and the non-oppressed regions of the thylakoid. What more, guys, if you see, we had talked about chemiosmotic hypothesis, where I had already told you that in chemiosmotic hypothesis it was assumed that mitochondria was made from a bacteria, or came from a bacteria. When bacteria engulfed an organelle, it came to be known as a doubles, you can say a doubles membrane structure. So these are all hypothesis. Hypothesis का मतलब होता है कि धारणा है ना, एक assumption ऐसी हुई, ऐसी कुछ धारणा हुई, इन लोगों ने ये बातें कह दी. इट देर वॉज नो प्रूफ कि ये चीज हुई है, गाइज. इट वॉज जस्ट कि हाँ ऐसा सोचा गया और इस चीज को यहाँ पे बोल दिया गया है. The next thing is, guys, if we talk about cyclic and non-cyclic photophosphorylation, तो non-cyclic में मैंने आपको बताया था कि पहले P680 यानी photosystem 2 will act, ठीक है. उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा. इट विल देन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू प्लास्टोक्विनॉन. Plastocquinon will transfer to cytochrome B6F. Cytochrome B6F will transfer electron to plastocyanine, and then you see PS1 will get activated, where you will see P700 is activated है ना in PS1. Then what you see, FESA, FESB is present, where this FNR is reducing NADP to NADP reductase, and NADPH is formed. Fine. So in non-cyclic photophosphorylation, we are seeing here H plus is formed, ATP is formed, as well as NADPH is formed. But when we talk about PS1 system, guys, or the cyclic phosphorylation, only the PS1 system is involved. Over here, what happens? This PS1, it takes the electron, okay, gives to the primary electron acceptor. This primary electron acceptor is an iron sulfur complex. Now what this does, guys, instead of transferring the electron to FeSa, it transfers the electron back to cytochrome B6F. And cytochrome B6F itself, what it does, it has the capacity or the capability to make ATP. So ATP is made, again it is transferred back to FES. FES again transfers this, and therefore this process is an ongoing cyclic process, and therefore we say कि यहाँ पे सिर्फ ATP बनता है, ना NADPH बनेगा, गाइस, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस हॉल्ट हो चुका है, और चूंकि ये प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो H प्लस आप ऐसे भी नहीं देख पाओगे. सो ओवर हेयर व्हाट हैपेंस, ओवर हेयर यू सी कि सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है, सिर्फ ATP की फॉर्मेशन हो रही है. ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज. अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो एंड इफ यू गाइज हैव जॉइंड, प्लीज कमेंट, है ना, थम्स अप कर दो प्लीज, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट येस पीपल आर रिस्पॉन्डिंग एंड यू गाइज आर चैटिंग और यू गाइज आर टेकिंग इट इन अ सीरियस वे. चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट गाइज. हमने यहाँ पे सारी बातें कर ली थी कि किस तरह साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चल रहा है, किस तरह नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चल रहा है. Now guys, one more thing I told you was about the difference between chloroplast and the difference between mitochondria, and how is ATP made in the chloroplast, how is ATP made in the mitochondria. Okay, taking the gist of it, guys, if I tell you once again, just let me draw it for you once again. For we are talking about the chloroplast, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं गाइस.
तो हम देखेंगे इस तरह से कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट. अ क्लोरोप्लास्ट लुक्स समवॉट लाइक दिस. See, it is made somewhat like this, where this is the outer membrane. This is the inner membrane we are talking about. Guys, this is one is called the thylakoid, and the whole set, this whole, is known as granum, which is a singular. If we call all granum, if we call it in plural, it will be grana, not granum. Okay, plural will be grana. Now, guys, the next thing is, you see, this is the matrix, okay, or the matrix is also known as stroma. So if we talk about this, guys, this is the stroma. What happens is, as we already told you all yesterday, that light आएगी, light will come and it will hit the membrane of the thylakoid. ठीक है, क्या होगा, thylakoid membrane को hit होगा. और जब ये thylakoid membrane को hit होगा, guys, the water molecules present inside this membrane of the thylakoid will get split. So this H2O molecule, guys, ये split हो जाएगा. किसमें split करेगा, तो ये H plus है ना, और O2 molecules में split कर जाएगा. Now what you see, guys, see क्या होता है, जब ये स्प्लिट कर जाएगा तो ना भी ये थाइलाकॉइड के अंदर बहुत सारे H प्लस आयन्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे. तो अब मैं मेन आपको क्या बताना चाह रही हूँ, अगर मैं लोकेशन बात करूँ लोकेशन की कि PS2 किधर प्रेजेंट है, तो PS2 इधर अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा गाइस. लेकिन यही बात हम PS1 की करें तो PS1 समवॉट आपको इधर बाहर की साइड देखने को मिलेगा. ठीक है, या फिर कभी कभी अंदर के साइड भी PS1 प्रेजेंट होता है. सो PS1 इज द वन. ठीक है, PS1 कौन सा है, जो साइक्लिक में काम कर रहा है. PS2 कौन सा है गाइस, जो नॉन साइक्लिक में काम कर रहा है. ठीक है, PS2 PS1 दोनों नॉन साइक्लिक में होता है, लेकिन साइक्लिक में सिर्फ PS1 काम करता है, PS2 काम नहीं करता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गाइस, द नेक्स्ट बिग थिंग आई वांट टू टेल यू कि ATP तो यहाँ पे बनती है किधर, तो ऑन दिस, ये वाला जो आपको थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, इस थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे ही ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है गाइस, इसी के ऊपर आपको ऑक्सीजोम्स का फॉर्मेशन या ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट नजर आएंगे. मतलब क्या, मतलब ये है बच्चों कि अगर हम देखें कि ATP कहाँ बन रहा है, तो ATP सिंपली इस H प्लस को यूज करके इधर से स्ट्रोमा के अंदर बनेगा. ADP में PI जुड़ जाएगा और ATP बन जाएगा. ठीक, वन मोर बिग थिंग कि ATP विल बी फॉर्म्ड इनसाइड द स्ट्रोमा. नाउ गाइज आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू, ये कहना चाह रहे, ये समझाना चाह रही हूँ, मान लो अगर आपसे कोई सवाल पूछता है, समवन आस्क्स यू कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर, एक आदमी है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है. ठीक, और इस आदमी को गाइस कितनी मेम्ब्रेन को क्रॉस करनी पड़ेगी तब वो जाके थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर पहुंचेगा. सो यू विल आंसर दिस इन चैट बॉक्स, या फिर कमेंट में आप लोग बताओगे कि कितने मेम्ब्रेन इसको क्रॉस करना पड़ेगा तब जाके ये अंदर की तरफ जाएगा. ठीक है, नाउ गाइस सी, कितने मेम्ब्रेन, हाउ मेनी मेम्ब्रेन, यू हैव टू टेल हाउ मेनी. It has to cross. This you guys will answer in the chat box or the comment box. Now the next thing is guys, I just wanted to tell you कि ये सारी चीज़ें लाइट रिएक्शन में सारा चीज़ हो रहा है. ATP बन रहा है गाइज, NADPH बन रहा है एंड H प्लस आयंस जो कि ATP में हेल्प कर रहे हैं बनने में. अब ये
व्हाट यू सी गाइस कि हम कहते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है, चीज यहां से शुरू होती है। हम कहते हैं लाइट रिएक्शन और एक तरफ हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। द नेक्स्ट बिग थिंग, लाइट रिएक्शन का मतलब ये होता है एनीथिंग दैट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब इस लाइट के प्रेजेंस में जितनी भी रिएक्शन हो रही है, जो भी रिएक्शन हो रही है, तो लाइट रिएक्शन क्या देखोगे आप यहाँ पे, अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और डार्क रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा गाइस कि ये डार्क में होगा, ठीक है, प्लीज, दिस विल अकर ओनली आफ्टर लाइट रिएक्शन, ठीक है, दिस विल अकर ओनली आफ्टर लाइट रिएक्शन। अब गाइस जो डार्क रिएक्शन है इसको मिसनोमर कहा जाता है। Misnomer is means a misleading term. It is saying dark reaction. People will think that it occurs in the dark. That is why dark reaction. But no, guys, it is said to be dark reaction because it occurs only after light reaction, and the reason behind it is because as it is dependent on the products of लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है गाइस, इसीलिए हम इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, ना कि इसलिए कि ये डार्क में हो रहा है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो अब दो तीन चीजें हैं लाइट रिएक्शन में। हमारे पास क्या क्या बना गाइस, हमारे पास लाइट रिएक्शन में बना है एटीपी, NADPH। हम क्या कह रहे हैं कि ये एटीपी और NADPH जा रहा है कहाँ, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में जाके क्या कर रहा है, CO2 को रिड्यूस करके ग्लूकोज बना रहा है। व्हाट इट इज डूइंग, basically it is reducing carbon dioxide, why, to form glucose। अब यही जो ग्लूकोज है guys, where is it forming, this dark reaction takes place और occurs in the stroma। कहाँ पे हो रहा है ये, this is occurring in the stroma। डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, CO2 की रिडक्शन कहाँ पे देख रहे हो आप, स्ट्रोमा के अंदर। तो चलते हैं एक बारी गाइस, विल मूव टू द डार्क रिएक्शन कि क्या होता है, कैसे होता है, ताकि हम और भी चीजों को समझ पाए। सो द फर्स्ट थिंग इट सेज दैट CO2 कंबाइंस विथ H2O, ठीक है, टू फॉर्म शुगर। CO2 क्या करता है, H2O के साथ कंबाइन हो जाता है ताकि शुगर दे पाए। We all know this. Now guys, the next thing is CO2 assimilation during photosynthesis is of two types. So they are talking now कि ये जो CO2 है, जैसे मैंने बोला कि इसकी रिडक्शन या assimilation हो रही है, तो CO2 की जो assimilation है गाइस, वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप, एक है गाइस आप बोलते हो C3 cycle and one is the C4 cycle, ठीक है। दो तरह से एसिमिलेशन देखते हैं हम CO2 का, एक है C3 साइकिल और एक है C4 साइकिल। नाउ गाइस होता क्या है, व्हाट इज द C3 साइकिल एंड व्हाट इज द C4 साइकिल। तो कमिंग मोर टू इट, C3 साइकिल को C3 इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना है इस साइकिल में वो 3 कार्बन का प्रोडक्ट है। C4 को C4 इसलिए कहा जाता है बेस्ड ऑन, व्हाई आर दे नेम्ड, बेस्ड ऑन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो C3 में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है गाइस वो 3 कार्बन का है इसीलिए C3, और C4 में जो पहला प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन का है इसीलिए C4, ठीक है। अब गाइस फटाफट हम ये साइकिल देखेंगे कि किस तरह से ये साइकिल काम करता है।
सबसे पहले गाइस, जो C3 साइकिल है उसका और भी नाम है। C3 cycle is also known as Calvin cycle. C3 cycle is also known as Calvin cycle. क्या कहलाता है ये? कैल्विन साइकिल कहलाता है। चलिए देखते हैं इस साइकिल में होता क्या है। गाइज ये जो साइकिल है C3 साइकिल, ये 3 स्टेप में प्रोसेस करता है। देयर आर C3 साइकिल का स्टेप्स कितने हैं? 3 स्टेप्स हैं। देयर आर 3 स्टेप्स इन C3 साइकिल। सबसे पहला स्टेप में आप देखते हो, या जो पहला स्टेप है इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। पहले स्टेप को क्या कहते हैं गाइस? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है? इट इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ CO2। ठीक। जो दूसरा स्टेप है गाइस, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। और जो तीसरा स्टेप है गाइस, उसको हम कह रहे हैं रीजेनरेशन। ये टोटल 3 स्टेप होते हैं इस साइकिल में। सबसे पहले हमें क्या जानना है? हमें एक एंजाइम के बारे में जानना है गाइस, जिसका नाम है रुबिस्को। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस एंजाइम, ये जो एंजाइम है रुबिस्को गाइस, ये अर्थ पे पाए जाने वाला सबसे एबंडेंट एंजाइम है। क्या कहते हैं? दिस एंजाइम रुबिस्को इज दी is the most abundant enzyme found on earth. This enzyme Rubisco. ठीक है। Now what you see, this Rubisco enzyme, okay, it combines with CO2. It has two properties. What it has two properties? पहला तो अगर CO2 is available in the environment, it will combine with CO2. If CO2 is less in environment, it will combine with oxygen or O2. So what happens guys, जो CO2 है ना, उसके साथ कंबाइन करेगा रुबिस्को, तो ये C3 साइकिल बनाएगा। लेकिन अगर इसने O2 के साथ कंबाइन कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा, जो कि एक कैसे, विच इज अ टाइप ऑफ अ प्रोसेस दैट इज वेरी डिसएडवांटेजेस टू द प्लांट। ठीक है। तो व्हाट वी विल सी कि C3 साइकिल में क्या होता है, एट द इनिशियल पॉइंट, सबसे पहले स्टेप में ये जो CO2 है, इट कंबाइंस विथ RUBP। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, अब ये जो RUBP है, रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक। और ये जो CO2 है गाइस, ये 1 कार्बन का कंपाउंड है, क्योंकि इसमें 1 कार्बन दिख रहा है, इसमें 5 कार्बन। तो अगर हम बात करें कायदे से, लॉजिकली इफ वी टॉक अबाउट दिस, वी विल सी कि 6 कार्बन का कंपाउंड बनना चाहिए। ठीक है। बट हमने बोला कि जो सबसे पहला प्रोडक्ट बना था, पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना था, वो 3 कार्बन का था। ओके। नाउ पीपल एट दैट टाइम वेर कंफ्यूज्ड कि अगर ये 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये CO2 किसी 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हुआ होगा, विच इज अ रॉन्ग, है ना, विच इज अ रॉन्ग थिंग। बट एट द लास्ट इट केम टू बी नोन कि ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, उसका नाम है PGA। ठीक है, 3PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ना गाइस, क्योंकि ये 3 कार्बन का कंपाउंड है और हमने देखा कि CO2 की रिडक्शन होके ग्लूकोज बननी है, तो PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे?
2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं क्या, कार्बोक्सिलेशन। चलते हैं गाइस, देखते हैं इस प्रोसेस को थ्रू दिस साइकिल। एक साइकिल दे रखा है, फॉलोइंग दिस साइकिल हमने क्या बोला कि ये जो RuBP है, जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है, ये किसके साथ मिलता है, ये मिलता है गाइस CO2 के साथ। ठीक है, और ये क्या बनाता है, PGA। PGA क्या है, व्हाट इज 3 PGA? ठीक है, ये 3 PGA बना रहा है, जो कि क्या है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। और ये कितने मॉलिक्यूल्स इसके, 2 मॉलिक्यूल्स बना रहा है। नाउ गाइस इट गेट्स रिड्यूस्ड, दिस 3 PGA विल गेट रिड्यूस, इसमें रिडक्शन करेगा और ये ट्रायोस फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। Now this triose phosphate guys again I told you यहाँ से यहाँ तक कि 3 PGA बन रहा है, इसको हम कह रहे हैं, इस प्रोसेस को ही हम कह रहे हैं कार्बोक्सिलेशन। गाइस जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि CO2 का एडिशन हो रहा है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, और H2O वाटर भी ऐड हो रहा है, यहाँ जाके ये 3 PGA का 2 मॉलिक्यूल बन रहा है। नाउ द सेकेंड प्रोसेस इज गाइज रिडक्शन, जिसमें आप क्या देखोगे कि ये जो 3 PGA है, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस होके ट्रायोस फॉस्फेट बन जाएगा गाइस। अब देखना, रिडक्शन के प्रोसेस में आपको एक ATP लग रहा है, यहाँ पे आप देखोगे क्या, एक ATP एक NADPH, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA है गाइस, तो यहाँ पे 2 ATP और 2 NADPH की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद रिडक्शन में गाइस, रिडक्शन के बाद आप देखोगे कि सुक्रोज और स्टार्च निकल जाता है, और वापस से ये ट्रायोस फॉस्फेट रीजनरेशन का स्टेप फॉलो करके गाइस RuBP बनने की कोशिश करे। तो आप देखोगे इस प्रोसेस में भी आपको क्या दिख रहा है, एक ATP यूज हो रहा है। तो टोटल अगर मैं बात करूं कि क्या प्रोसेस क्या हो रहा है गाइस, तो प्रोसेस ये हुआ कि पहला प्रोसेस जिसको हमने बोला कार्बोक्सिलेशन, पहला प्रोसेस जिसको हमने क्या बोला, कार्बोक्सिलेशन। नाउ द सेकेंड प्रोसेस गाइस, रिडक्शन। इस प्रोसेस में हमने क्या देखा, इस प्रोसेस में हमने देखा कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, ठीक है, ये क्या, ट्वाइस ऑफ PGA क्या बन रहा है, ट्रायोस फॉस्फेट। ये ट्रायोस फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बना रहा है, और इस प्रोसेस में हमें क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे 2 ATP और 2 NADPH का यूज हो रहा है गाइस। नाउ द थर्ड प्रोसेस इज रीजेनरेशन। So the third process guys, regeneration। इसमें आप क्या देखोगे कि ये वापस से RuBP बनना चाहेगा, जिसमें आपको क्या दिख रहा है, इस प्रोसेस में एक ATP की यूज फिर से हो जा रही है। तो ऑन एन एवरेज गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने ATP और कितने NADPH आपको टोटल दिख रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ 2 ATP प्लस यहाँ एक ATP, तो टोटल हमें गाइस यहाँ पे 3 ATP नजर आ रहा है, और हमें टोटल 2 NADPH नजर आ रहा है। कितना, 2 NADPH। नाउ गाइस दिस इज द टोटल कैलकुलेशन जो हमको एक साइकिल में, इट इज द कैलकुलेशन पर साइकिल, ठीक है, 3 ATP and 1 NADPH, what is this, this is the calculation पर साइकिल, पर साइकिल का कैलकुलेशन है। अब गाइज मैं एक बात आपको बता दूं कि ये 1 CO2 से शुरू हुआ है, मतलब एक कार्बन से शुरू हुआ है, और ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ना, ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो गाइज 6 कार्बन का जब मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, तो ये साइकिल कितनी बार चलेगी, दिस साइकिल हैज टू, ये 6 बार चलेगी,
ठीक है, दिस साइकिल हैज टू अकर 6 टाइम्स। तो गाइज अगर इसी तरह हम बोले कि फॉर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, for one glucose molecule total ATP and NADPH count will be, क्या होगा भाई बता दो, टोटल एटीपी और एनएडीपीएच का काउंट क्या होगा। तो आप देखो कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में अगर एक बार साइकिल चल रहा है तो अपन लोगों को 3 एटीपी और 2 एनएडीपीएच मिल रहा है। अगर यही साइकिल गाइस 6 बार चला तो इंटू 6 कर दो, तो क्या मिलेगा अपने को, मिलेगा 18 एटीपी एंड 12 एनएडीपीएच। ठीक है, ये टोटल क्या हो गया, 18 एटीपी मिलेगी और 2 एनएडीपीएच मिलेगा अगर ये हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो, किसमें, C3 साइकिल में। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट ये C3 साइकिल की बात हमने करी गाइस, जिसमें जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो PGA मॉलिक्यूल बन रहा है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। नाउ गाइस द नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, इसके बाद C3 साइकिल के बाद हम जो देखने वाले हैं, देखो इसका काउंटिंग यहाँ पे भी दिया है कि एक ग्लूकोज 6 CO2 का है तो 18 ATP और 12 NADPH की हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नाउ थोड़ा सा बात कर लेते हैं गाइस फोटो रेस्पिरेशन का। जैसा मैंने अभी आपको बताया C3 के बाद जो हमें पढ़ना है वो है फोटो रेस्पिरेशन। इस पे थोड़ी बात करते हैं गाइस कि ये क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन। तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो रुबिस्को एंजाइम जो हम कह रहे थे, इसके पास प्रॉपर्टी क्या है, CO2 के साथ भी बाइंड करे और O2 के साथ भी बाइंड करे। ठीक है, O2 के साथ भी बाइंड करे और CO2 के साथ भी बाइंड करे। अब गाइज इसके बाद आप क्या देखोगे कि जब ये CO2 के साथ बाइंड ना करके O2 के साथ बाइंड करता है तो ये प्रोसेस चलती है जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। प्रोसेस चलती है जिसका नाम क्या है, फोटो रेस्पिरेशन। अब देखो गाइस, ये जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये प्लांट्स के लिए हार्मफुल प्रोसेस है। ये हार्मफुल प्रोसेस क्यों है, तो क्योंकि गाइस हमने क्या देखा कि जब एक CO2 प्रेजेंट था और तब जाके ये RUBP के साथ मिल रहा था तो ये PGA दे रहा था, लेकिन अब यहाँ पे CO2 ना होके गाइस O2 प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब O2 प्रेजेंट है RUBP के साथ तो अभी ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड बनाएगा, जो जिसमें कि जो एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का होगा गाइस और एक मॉलिक्यूल 2 कार्बन का होगा, तब तो 5 कार्बन सेटिस्फाई हुआ। तो 3 कार्बन वाला एक PGA तो बना लेगा वो ये। ठीक है, 3 कार्बन वाला जो है 3 PGA तो बना लेगा, पर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे PGA की जगह गाइस क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लिसरेट की जगह ग्लाइकोलेट बन जाएगा। सो व्हाट विल हैपन कि अब गाइस है ना, ये ग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल जो है ये 2 कार्बन का है। नाउ ये ग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल होता है, तो इट विल जस्ट ट्राई टू बिकम स्टेबल। तो इन दैट केस व्हाट इट विल डू, ये किसी तरह, ठीक है, एक कार्बन को एनवायरनमेंट से खींचेगा और अपने आप को 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से 3 कार्बन वाला PGA मॉलिक्यूल बना लेगा। बट गाइज ये आसान होता नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज लेस, यहाँ पे ऑलरेडी एक CO2 की कमी है। किसी तरह वो जब CO2 को खींचता है तो इस प्रोसेस में बहुत सारे ATP, अप्रोक्स 20 to 30 ATP इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, एक समझना, ऑलरेडी कमी है
और कमी में और भी ये CO2 कहीं से भी प्लांट से खींच रहा है, तो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, इन दैट केस गाइज इसमें और डेफिशिएंसी नजर आएंगी। देयरफॉर दिस प्रोसेस इज सेड टू बी हार्मफुल प्रोसेस, है ना, कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला, ऑलरेडी कम है उसमें भी कमी हो रही है, तो ये प्रोसेस होगा। देयरफॉर इस प्रोसेस को प्लांट चाहता है कि किसी तरह हम इस प्रोसेस को स्केप करें, क्योंकि ये प्रोसेस होने के वजह से क्या हो जाता है, प्लांट को नुकसान होता है गाइस, ATP का भी और CO2 का भी। फाइन। सो गाइस टू ओवरकम दिस a cycle has been adapted by the plants that is known as the C4 cycle। ओके तो अब हम आएंगे गाइस, अब हम पढ़ेंगे कि C4 साइकिल क्या होता है। देखिएगा वन मोर थिंग गाइस, ये जो साइकिल चल रही है C3 साइकिल की, जो मैंने आपको बात करा कि ये C3 साइकिल जो है ये मीजोफिल सेल्स में चलते हैं। कहाँ चल रही है ये मीजोफिल सेल्स में चल रही है। अब चलेगा C4 साइकिल, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे C4 साइकिल। तो गाइज अगर हम C4 साइकिल की बात करें, ठीक है, C4 साइकिल देखें हम तो C4 साइकिल में आप क्या देख रहे हो कि जो C4 है क्या है भाई, तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो है इसका, ठीक है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। C4 मतलब ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसीलिए हम कह रहे हैं C4 साइकिल। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गाइस कि C4 का मतलब इसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो होगा वो 4 कार्बन का होगा, वही चीज है। तो व्हाट हैपेंस गाइस कि ये जो C4 साइकिल है प्लांट ने इसको थोड़ा अलग सा अडेप्टेशन किया है। ये C4 साइकिल सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल सेल्स में नहीं होते हैं, ये 2 जगह पे होते हैं, एक तो मीजोफिल सेल्स और दूसरा बंडल शीथ सेल्स। दूसरा क्या है, बंडल शीथ सेल्स। अब एक चीज समझिएगा गाइस, दो एक ही हमने क्या बोला, एक ही साइकिल में 2 अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो एक मीजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट अलग होंगे, बंडल शीथ सेल्स के क्लोरोप्लास्ट अलग होंगे। तो हम कहेंगे कि कैसा प्रेजेंस देख रहे हैं, तो डाइमॉर्फिक 2 मॉर्फोलॉजी वाले क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं हम, है ना, प्रेजेंस ऑफ डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। अब गाइस इसी C4 साइकिल को हम कहते हैं कि प्लांट के पास क्रैंस एनाटमी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनाटमी है। एक तरफ अलग टाइप के सेल्स हैं, एक तरफ रेथ टाइप के सेल्स हैं, एक तरफ फ्लैटन टाइप के सेल्स हैं। तो 2 अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए कहते हैं कि इनमें क्रैंस एनाटमी है। ये डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है क्योंकि ये 2 अलग अलग क्लोरोप्लास्ट, 2 अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट इस प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे गाइस कि जो CO2 है, ठीक है, ये क्या करता है, ये पेप के साथ, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है और ये 1 कार्बन, ये क्या होता है, कंबाइन होके एक 4 कार्बन वाला स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है ऑक्सैलो एसीटेट। ये कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। फाइन, तो 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है। अब नाउ यहाँ पे गाइस एक एंजाइम यूज होता है, उसका नाम है पेप्केज। और ये कहाँ पे हो रहा है, इट इज अकरिंग इन दी मीजोफिल सेल्स। ये कहाँ पे हो रहा भाई, ये मीजोफिल सेल्स में हो, ठीक। नाउ गाइस दिस ऑक्सैलो एसीटेट, नाउ दिस विल गेट कन्वर्टेड, दिस ऑक्सैलो एसीटेट, ये OAA जो 4 कार्बन का कंपाउंड है, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में, विच इज अगेन अ 4 कार्बन का कंपाउंड,
ठीक। नाउ दिस प्रोसेस गाइस, पहला वाला जो हुआ इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला कार्बोक्सिलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला हमने, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोला हमने, इसको हमने बोला रिडक्शन। अब ये मैलिक एसिड गाइस, दिस विल बी ट्रांसपोर्टेड कहाँ पे, बंडल शीथ सेल में। ये दिस विल बी ट्रांसपोर्टेड टू दी बंडल शीथ सेल, ये बंडल शीथ सेल यहाँ पे। और ये जो मैलिक एसिड है गाइस, इसको क्या किया जाएगा, इसको वापस से तीन कार्बन वाला प्रोडक्ट जिसका नाम है पायरुवेट में चेंज कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। ठीक है। तो ये 4 कार्बन वापस जब 3 कार्बन में बदलेगा गाइस, तो यहाँ पे होगा डी कार्बोक्सिलेशन, जो कि C3 में नहीं हो रहा था। ना गाइस, दिस 3 कार्बन वाला पायरुवेट ये चाहेगा वापस से अपने आप को कन्वर्ट करने का, किसमें, पेपकेज में। तो ये क्या करेगा, सॉरी पेप में, आई एम सो सॉरी, ये एरो गलत लग गया है। क्या चाहेगा ये अपने आप को कन्वर्ट करने, ये वापस से चाहेगा कि मैं किसी तरह पेप बन जाऊं। ठीक है। तो ये 3 कार्बन वाला वापस जब पेप बनना चाहेगा, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम रीजनरेशन। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस गाइज, यहाँ पे 2 ATP खर्च होता है, यूज होता है। तो आप एक चीज समझिएगा, ये जो बंडल शीथ सेल है यहाँ पे ऑलरेडी आप देखोगे कि ये जो बंडल शीथ सेल है यहाँ पे ऑलरेडी C3 साइकिल चलते रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आप 4 अलग अलग प्रोसेस देख रहे हो। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो सेम चीज है गाइस। पहले क्या है, पहले हमने क्या बोला कि मीजोफिल सेल्स में CO2 पेप के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा, ऑक्सैलोएसीटेट। ऑक्सैलोएसीटेट मैलिक एसिड बनेगा, मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है। फिर C4 एसिड वापस से डिकार्बोक्सिलेशन करके C3 एसिड बना लेगा। नाउ दिस C3 एसिड विल अगेन बी ट्रांसपोर्टेड back to the mesophyll cells। ठीक है, फ्रॉम दी बंडल शीथ सेल। और इसी बंडल शीथ सेल में एक तरफ C3 साइकिल चल ही रहा है। तो आपने ओवरऑल क्या देखा गाइस, या हमने ओवरऑल क्या देखा, हमने ओवरऑल देखा ये कि ये जो बंडल शीथ सेल्स है उसमें C3 साइकिल चल रहा है और यहाँ से वापस रीजनरेशन। अब इस रीजनरेशन में 2 ATP एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक। नाउ गाइस, दिस आई वाज टॉकिंग इज अबाउट 1 साइकिल। ये एक साइकिल की बात हो रही। वापस से अगर 6 बार ये साइकिल चली है ना, वापस से अगर 6 बार ये साइकिल चली तो 6 टाइम्स अगर ये साइकिल चली तो नंबर ऑफ ATP काउंट कितना हो जाएगा गाइज, एक बार ही बता देना। और नंबर ऑफ NADH कितना हो जाएगा। तो NADH एक्स्ट्रा तो कहीं नहीं लग रहा है, ये जो C3 में चल रही है तो ये 12 ही रहेगा। बट गाइज अगर हम ATP की बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं, 2 ATP एक्स्ट्रा पर साइकिल लग रहा है। 6 साइकिल में एक्स्ट्रा 12 ATP लगेगा। तो अगेन इट विल बी 12 ATP प्लस ऑलरेडी C3 में 18 ATP प्रेजेंट था। तो गाइज अगर मैं ATP की बात करूं तो ऑन एन एवरेज टोटल 30 ATP का कंजम्पशन हम देखते हैं किसमें, C4 साइकिल में। तो गाइज आई होप कि ये क्लियर हो रहा है सबको कि C3 साइकिल क्या है, C4 साइकिल क्या है। ठीक है। तो ये अगर मैं इस प्रोसेस को, इफ आई राइट डाउन दिस प्रोसेस ऑन अ स्लाइड कि क्या क्या होता है इस पूरे फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, तो गाइज हम देखेंगे कि इन दिस फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो चल रहा है, सॉरी आई एम राइटिंग फोटो रेस्पिरेशन C4 साइकिल। तो हम क्या देखेंगे कि इस C4 साइकिल का प्रोसेस जो चल रहा है इसमें हमने देखा कि ये पहले तो 4 पार्ट्स यानी 4 साइकिल में डिवाइडेड है गाइस। अगर मैं इसी को यहाँ पे, इफ दिस द सेम स्लाइड, आई एम लाइक इफ आई just bifurcate it into, if I bifurcate it into mesophyll cells and bundle sheath cells, तो ये कैसा दिखेगा। देखो इसको मैं रेड कलर ले लेती हूँ। ठीक है, अंडरस्टूड होगा।
तो ये वाला जो पार्ट है गाइज, ये ठीक है, दिस इज व्हाट इज द बंडल शीट सेल। एंड ये वाला जो पार्ट है गाइज, ये दिस इज व्हाट इज द मीजोफिल सेल्स। ठीक है, अगर मैं बाइफोकेशन करके दिखाना चाहूँ, अब इसी चीज को अगर मैं C4 साइकिल बना के बताऊं आपको, तो सबसे पहला स्टेप आप देखोगे यहाँ कार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक। उसके बाद गाइज रिडक्शन होगा, रिडक्शन होने के बाद जो मैलिक एसिड होगी वो पहुंचेगी बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में ये 4 कार्बन वाला मैलिक एसिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ 3 कार्बन कंपाउंड, और ये बंडल शीट सेल में ऑलरेडी C3 चल रहा है बंडल शीट सेल में। नाउ गाइस, दिस 3 कार्बन वाला जो कंपाउंड है वापस से, है ना, वापस से जो पेप है उसमें कन्वर्ट करना चाहेगा। इस स्टेप को कहेंगे रीजनरेशन। क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। और जो रीजनरेशन होता है गाइस, इसमें एक्स्ट्रा 2 ATP का खर्च होता है। तो यहाँ पे 18 ATP ऑलरेडी यूज हो रहा था गाइस, यहाँ पे इंटू 6 कर दोगे तो 12 ATP। तो ऑन एन एवरेज आप देख रहे हो कि C4 साइकिल में 30 ATP प्लस 12 NADH, दिस इज द बैलेंस शीट फोटोसिंथेसिस का। क्लियर हुआ? चलो गाइस फटाफट बता दो यार, जो लोग व्यू कर रहे हैं एटलीस्ट प्लीज टेल मी यार। गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड इफ यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। कुछ तो बोल दो, तुम्हें लोग चैट कर लो, तुम्हें लोग लिख दो, कुछ कमेंट कर दो। आई एम सीरियसली नॉट अंडरस्टैंडिंग। ओके, कमेंट सेक्शन है, यस मैम, ओके फाइन। कौन है भाई? रोहित बाघेल। रेस्ट ऑफ यू, एक तो व्यू भी इतने कम है। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ इट्स अंडरस्टूड, या फिर कमेंट कर दो। कमेंट करो, कमेंट करो जल्दी फटाफट। ओके फाइन। तो गाइज नाउ इसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सी कि what is the difference between C3 cycle and C4 cycle on an average। C3 और C4 के बीच क्या डिफरेंस है हमें देखना है। तो वापस से हम एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे, है ना, या फिर हम ये इसको रेफर कर सकते हैं गाइस। सो दिस स्लाइड, इन दिस स्लाइड दे हैव डिफरेंशिएटेड बिटवीन C3 एंड C4। क्या डिफरेंस है? सबसे पहले गाइस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि C3 साइकिल जो है वो मीजोफिल सेल्स में आकर करता है, लेकिन C4 साइकिल जो है गाइस उसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो मीजोफिल एज वेल एज बंडल शीट सेल दोनों में आकर करता है। ठीक है, इन बोथ C3 एंड in C4 plant both mesophil and bundle sheet cells। now the next is guys, C3 plant में आप देखोगे, अब इसी को गाइस 2 तरह के अलग अलग सेल्स हैं, तो हम कहते हैं क्रैन्स एनाटमी प्रेजेंट है। क्या है? क्रैन्स एनाटमी है। लेकिन C3 सेल में, C3 प्लांट्स में क्रैन्स एनाटमी विल बी एब्सेंट गाइस। क्या होगा? क्रैन्स एनाटमी एब्सेंट होगा। नाउ वन मोर थिंग, हमने बोला था कि C3 प्लांट में जो रुबिस्को है वो CO2 के साथ बाइंड करता है और प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है। लेकिन गाइस इन केस ऑफ C4 प्लांट, पेप जो होता है ना, फॉस्फोइनॉल पायरोवेट, वो एक्सेप्टर है प्राइमरी, और वो 4 कार्बन का कंपाउंड बनाता है, ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता है जिसका नाम है ऑक्सैलोएसीटेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनता है? C3 साइकिल में PGA बनता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गाइज व्हाट यू सी, यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 PGA जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, एक स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन सेम यहाँ पे ऑक्सैलोएसीटेट जो कि एक 4 कार्बन की कंपाउंड है वो बन रही है। नेक्स्ट यू सी कि क्लोरोप्लास्ट्स आर ओनली ऑफ वन टाइप, ऑलरेडी टोल्ड ग्रैनल, लेकिन यहाँ पे ग्रैनल मीजोफिल सेल्स में, वेयर एज ए ग्रैनल गाइज बंडल शीट सेल्स में आपको देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन जो है या फोटो रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है, ठीक है, द लॉस इज हाई, ज्यादा हो रहा है, बट ओवर हियर द फोटो रेस्पिरेशन इज नेग्लिजिबल और एब्सेंट, ना के बराबर हो रहा है, ठीक। देन यू सी कि हाई CO2 कॉम्पेंसेशन पॉइंट, यहाँ पे CO2 का जो कॉम्पेंसेशन पॉइंट है गाइस वो हाई है। वहां पे आप क्या देख रहे हो, C4 प्लांट में जो CO2 की कॉम्पेंसेशन पॉइंट है गाइस दैट इज वेरी लो। CO2 बहुत लो पॉइंट पे कॉम्पेंसेशन हो जा रही है, यानी कम CO2 पे भी फोटोसिंथेसिस हो जा रहा है, ठीक है। सेम वे इफ यू सी कि यहाँ पे ऑप्टिमम जो टेम्परेचर चाहिए गाइस वो आप क्या देख रहे हो, सॉरी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जो C4 प्लांट्स होते हैं गाइस उनकी टेम्परेचर जो आप देखोगे, ठीक है, दैट इज हाउ इट इज। तो आप देखोगे कि जो टेम्परेचर होता है CO2 प्लांट में वो ज़्यादा होता है, अबाउट 35 डिग्री टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम कह सकते हैं ना ये ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट में C4 प्लांट्स ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि फोटोसिंथेटिकली इट इज लेस एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिविटी इज लो, whereas it is photosynthetically more efficient and productivity is high। एग्जाम्पल्स दे रखा है राइस, व्हीट, बीन एंड पोटैटोज, ठीक है। और अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो मेज, शुगर केन, एमरंथ, सोरगम। वन मोर थिंग गाइस, ये जो एग्जाम्पल्स है यहाँ से नीट डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछता है। नीट हैज आस्क्ड आई गेस इन 2018 और 2019 दे हैव आस्क्ड गिवन ऑप्शंस 1 2 3 4 एंड दे हैव आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर C4 प्लांट्स, ठीक है। और ABC जस्ट मिक्स्ड मल्टीपल ऑप्शंस जो मिक्स करके देते हैं, ABC, BCD, ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम, वन और टू, लाइक दैट। सो दे कीप आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जाम्पल। सो आई वुड सजेस्ट कि सारे लोग पढ़ लेंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, यू पढ़ लेना इज डिफरेंट थिंग, यू हैव टू मेमोराइज कि C3 प्लांट्स के एग्जाम्पल्स क्या है, C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है। ओके कुछ तो बोल रहा है कोई बच्चा, फोटोसिंथेटिकली लेस मोर एफिशिएंट वाली लाइन समझा दो। ओके ओके, देखो यहाँ पे कह रहा है कि फोटोसिंथेटिकली लेस एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिविटी इज लो। मतलब ये गाइज ना कि फोटोसिंथेसिस जो हो रही है इसमें वो एफिशिएंटली नहीं हो रही। जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस होगा, CO2 जो है ग्लूकोज ज्यादा बनेगा, तो गाइज इसमें ग्लूकोज कम बन रहा है ना। तो ग्लूकोज कम बन रही है मतलब एफिशिएंसी कैसी है, लो है। और एफिशिएंसी लो होगी तो उस जगह का प्रोडक्टिविटी कैसा होगा, लो होगा। लेकिन इसके केस में गाइज इसको कम CO2 में, कम, इफ CO2 इज लेस, स्टिल ये बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो ऐसे केस में प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, हाई होगी, ठीक है। बताओ समझ में आया रोहित, होप यू अंडरस्टूड। प्रोडक्टिविटी लो, एफिशिएंसी लो, ओके। एफिशिएंसी हाई, प्रोडक्टिविटी विल बी हाई। एफिशिएंसी इज जस्ट लाइक कि अमाउंट ऑफ कितने एफिशिएंट, जैसे अगर मैं बोलूँ ना कि ये पूरे एक दिन में, एक डे में कितना फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब कितना CO2 से ग्लूकोज बन जा रहा है, तो C3 प्लांट में कम बनेगा एज कंपेयर टू C4 प्लांट्स, ओके। चलो फाइन। तो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट C3 C4। हमने देखो एक बार फिर से देख लो, मैंने क्या बोला कि मैंने बोला कि CO2 पेप के साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट वापस से क्या बनाएगा, मैलिक एसिड बनाएगा। मैलिक एसिड विल बी ट्रांसपोर्टेड बैक कहाँ पे, बंडल शीट सेल में। उसके बाद क्या होगा गाइज, बंडल शीट सेल से आप देखोगे मैलिक एसिड बाहर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, इसमें वापस से ये 3 कार्बन कंपाउंड बनाएगा और ये 3 कार्बन कंपाउंड वापस से पेप बनना चाहेगा, जिसके लिए रीजनरेशन में 2 ATP एक्स्ट्रा लगेगी। तो टोटल ATP 30 ATP का खर्च आप यहाँ पे देखते हो, 30 ATP का खर्च देखते हो किसमें, C4 साइकिल में, ओके। चले
मूविंग टू द नेक्स्ट, बहुत छोटी सी टॉपिक रह गई है इस चैप्टर की, जिसको हम कहते हैं गाइस क्या, जिसको हम कह रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। गाइस सबसे पहली बात आप ये समझना ओके बेटा, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो अगर हम बात करें तो देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट। ओके, what is that? It can be an internal factor and as well as it can be an external factor. Okay, इंटरनल की बात करोगे, प्लांट्स में इंटरनल फैक्टर क्या हो सकता है? उसकी साइज कैसी है लीव्स की, है ना, उसका क्लोरोप्लास्ट किस तरह का दिख रहा है, शेप कैसा है, ओरिएंटेशन यानी कि किस तरह से आप देख रहे हो किस तरह से घुमा हुआ है उसकी लीफ। इंटरनल, अंदर में CO2 कितनी प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, ऑल्सो कितना क्लोरोफिल का अमाउंट प्रेजेंट है। एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहर से मिल रहे हैं ना, जैसे सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, CO2 हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, तो गाइज ये तो हमने नहीं पढ़ना है क्योंकि ये सारी बातें हमने मॉर्फोलॉजी में देख ली है कि क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, किस तरह से प्रिपरेशन होती है, कौन कौन से सेल्स होते हैं। So now we are going to focus on the external factors and how they are the ones that are affecting photosynthesis. किस तरह से sunlight, temperature, CO2 का concentration और water photosynthesis को affect करेगा। Fine? भाई बच्चों तुम लोग ना जब क्लास खत्म होने वाली हो रही है ना तब तुम सब आ रहे हो, बताओ। सी, एक लॉ है गाइस जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्या कह रहे हैं? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। नाउ गाइस व्हाट does this law of limiting factor tells, या फिर ये क्या बताता है, ये क्या कहना क्या चाह रहा है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर? तो इसको थोड़े से अच्छे से समझना है ना, मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बहुत आसानी से समझाऊंगी। इसको आप क्या करोगे गाइस, इसको आप समझने की कोशिश करोगे। देखो, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय ए साइंटिस्ट जिसका नाम था FF ब्लैकमैन। नाउ अकॉर्डिंग टू हिम, ये क्या कहता है, ये इंसान क्या कहते हैं ब्लैकमैन, दिस साइंटिस्ट ही सेज कि अगर कोई प्रोसेस हो रही है, कोई भी प्रोसेस, से फॉर एग्जांपल XYZ, कोई भी प्रोसेस हो रही है, तो इस प्रोसेस को होने में गाइस, ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगेंगे। अगर जे से फॉर एग्जांपल कंपोनेंट 1 2 3 4, अगर किसी एक प्रोसेस को बहुत सारे कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं, हेल्ड कर रहे हैं, या बहुत सारे कंपोनेंट्स किसी एक प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में जो इन बहुत सारे कंपोनेंट्स में से जो सबसे कम, यानी कि हम क्या बोलेंगे, जो सबसे ऑप्टिमल या ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होगा, दैट प्रोडक्ट, और वी कैन से कि ये जो चार हैं उनमें से जो सबसे ऑप्टिमल होगा वही इस प्रोसेस को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक, अब देखो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। एक घर, कहते हैं ना डोमेस्टिक एग्जाम्पल, मम्मियों की किचन वाली एग्जाम्पल, फ्रॉम योर ममास किचन। ठीक है, देखो मम्मी जब खीर बनाती है तो खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है गाइस? सबसे पहले तो खीर बनाने के लिए यू नीड मिल्क, है ना, दूध चाहिए होगा, चावल चाहिए होगा, है ना, खीर वाली चावल चाहिए होगी, राइस, और क्या चाहिए होगा भाई, चावल के साथ ड्राई फ्रूट्स चाहिए होगा, व्हाट मोर, कार्डमम, है ना, इलायची चाहिए होगी, या फिर जो भी जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं ना, कार्डमम, इलायची लगेगी। तो ये प्रोसेस क्या होता है खीर बनने का? दूध लिया, ठीक है, बहुत लोग थोड़ी बहुत उसमें पानी भी मिलाते हैं, चीनी लगेगी इधर, है ना, चीनी लगेगी ना भाई, चीनी, वेदर इट डिपेंड्स कि आप गुड़ वाला खीर बना रहे हो या चीनी वाली खीर बना रहे हो, शुगर और जैगरी व्हाटसोएवर। तो अब देखो गाइस, इतने कंपोनेंट्स में से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसको मैं निकाल दूं तो खीर बनेगा ही नहीं? अगर ऐसे समझना गाइस, अगर हमने आधा, मान लो हमें 1 लीटर के दूध में हमें गाइस 10 ग्राम, ऐसे समझना
राइस डालना है और खीर बनाते। तो 1 लीटर में गाइस अगर हमने क्या किया कि 500 ml पानी मिला दिया और 500 ml हमने दूध लिया, ठीक है, तो भी खीर बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी, बस टेस्ट में मैम फ्यूल भी लगेगा। अरे बेटा ठीक है, फ्यूल भी लगेगा, चलो फ्यूल भी ले लेते हैं, बट फ्यूल इज नॉट द कंपोनेंट ना, फ्यूल पे तो सारा कुछ बन रहा है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंटरनल कंपोनेंट जो इसको बनने में लग रहा है। चलिए, तो हम क्या देखेंगे कि अगर हमने पानी को रिप्लेस कर दिया दूध के साथ फिर भी खीर बन जाएगी, लेकिन बेटा अगर क्या हमने राइस को आटे के साथ रिप्लेस किया तो खीर बनेगा? नहीं बनेगा। अगर हमने उसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला तो भी खीर बन जाएगा। गाइस अगर हमने इलायची नहीं डाली तो भी खीर बनेगा। अगर हमने शुगर जैगरी नहीं डाली तो भी खीर बनेगा, बकायदा उसका टेस्ट जो है वो फीका रहेगा, ठीक है। अब नाउ गाइज व्हाट यू सी, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इस खीर बनाने के प्रोसेस में जो सबसे ऑप्टिमम चीज लग रही, मिनिमम चीज लग रही है वो है चावल, जिसकी वजह से खीर बनेगा, ठीक है। तो यही बात मैं कहना चाह रही हूं कि ये भाई साहब ये क्या कहते हैं कि जो चीज सबसे ऑप्टिमम होता है किसी रिएक्शन को कराने में, वही डिफाइन करता है रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन के पूरे प्रोसेस को। जैसे यहाँ पे जो चावल है वो डिफाइन कर रहा है कि खीर बनेगी कि नहीं बनेगी। सो दिस वाज व्हाट दिस मैन सेड अबाउट लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। चलते हैं वापस, देखते हैं स्टेटमेंट क्या था, क्या बोला। इफ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, एक से ज्यादा फैक्टर अगर किसी बायोकेमिकल, ऑक्सीजन भी लगेगी, तू सब लगा ले, है ना, आसपास और भी कुछ चीजें हैं तो सब लगा लो एक खीर बनाने के लिए ही। मोर देन वन फैक्टर, इट्स रेट इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। मतलब कि अगर बहुत सारे फैक्टर्स किसी एक कंपोनेंट को बनाने में लग रही है, बहुत सारे फैक्टर्स गाइस, तो जो वो मिनिमल वैल्यू है, जो सबसे कम है ना, जिस कंपोनेंट की मिनिमल वैल्यू है, इट विल बी द फैक्टर दैट विल डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज्ड। ओके मैम, रोहित क्या क्या लिखा है इसने, रोहित सही लेफ्ट, I don't know what you guys are saying. I'm not able to understand. Directly affects the process if its quantity is changed. तो सिंपली यही मैं कहना चाह रही हूँ गाइस कि ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रोसेस में जो मिनिमल कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होएगी किसी भी फैक्टर की, वही डिटरमाइन करेगा पूरे के पूरे बायोकेमिकल प्रोसेस को। चलिए, एग्जाम्पल अ प्लांट विथ ग्रीन लीफ। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि एक प्लांट है जिनकी ग्रीन लीव्स है, ऑप्टिमल लाइट एंड CO2 मे नॉट फोटोसिंथेसाइज इन वेरी लो टेम्परेचर। सब कुछ है, क्या क्या है भाई, CO2 भी है इसके पास, लाइट भी है, लेकिन अगर इसमें हमने क्या करा, हमने टेम्परेचर को क्या क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया, वेरी लो कर दिया, तो इस केस में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। और वह जैसे ही हमने उसको वापस से टेम्परेचर दिया, ठीक है, जैसे वापस से टेम्परेचर दिया तो वापस से फोटोसिंथेसिस होने लगेगी। मतलब यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया गाइस, टेम्परेचर हो गया। अब ऐसे ही करके हम देखेंगे कि कौन से ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो कि लिमिट कर सकती है। चलिए, तो सबसे पहले गाइस कमिंग टू दिस, हम लाइट की बात करेंगे। अब देखिए, लाइट में दो चीज आपको जाननी है, एक है क्वालिटी, एक है क्वांटिटी, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइट एंड क्वांटिटी ऑफ लाइट। सी, लाइट की क्वालिटी और लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज क्वालिटी ऑफ लाइट, तो क्या बोलोगे, लाइट की क्वालिटी कैसी है? हु कैन आंसर दिस? क्वालिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या समझते हो? बताओ बताओ, क्वालिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या समझते हो? देखो गाइस, दो चीजें हैं। क्वालिटी ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट किस टाइम पे मिल रहा है ना। जैसे अगर मैं बात करूं बिल्कुल सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे लाइट मिलेगी गाइस, तो वो थोड़ा धीमा होगा, है ना,
कम होगा, उतने आपको उस एफिशिएंसी से नहीं मिलेगी इंटेंसिटी मैम। नाउ अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं कि किस इंटेंसिटी, तो गाइज इट इज समवॉट डिपेंडेंट ऑन दी वेवलेंथ, ठीक है। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है कि लाइट का टाइमिंग या ड्यूरेशन। अगर दोपहर में लाइट मिलती है गाइस तो प्रॉपर बहुत ज्यादा लाइट मिल रहा है ना, शाम में वो लाइट कम हो जाएगी। तो ये दो चीजें जो है ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई कि एक्सपोजर ऑफ लाइट कितना मिल रहा है ना, इस ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस को। अब देखिए गाइस, कहा गया है कि एक लीनियर रिलेशनशिप देखा जाता है बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट्स एट लो लाइट इंटेंसिटीज। नाउ यू गाइस आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस पार्ट, ये वाला जो ग्राफ है उस पे फोकस करोगे। क्या बोला जा रहा है, एक्स एक्सिस पे लाइट की इंटेंसिटी दी जा रही है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया जा रहा है। अब देखो गाइस, लाइट की इंटेंसिटी, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम, अगर यहां से देखो स्टार्ट हो रहा है, धीमी 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 कम इंटेंसिटी है, ठीक है। तो जब लाइट की इंटेंसिटी गाइस जैसे 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 बढ़ेगी, मतलब कम पे देखो फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ, फिर ये बढ़ रहा है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, फिर ये बढ़ रहा है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है गाइस, ये देखो ये बढ़ रहा है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ही बढ़ रहा है। जब लाइट की इंटेंसिटी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हो गया, तो अगर लाइट की इंटेंसिटी जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा गाइस, फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा इंटेंसिटी से लाइट आई तो ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस हो ही जाएगा, फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज भी तो हो सकते हैं, जो मीजोफिल सेल्स हैं उनकी वो डैमेज हो सकते हैं गाइस, डिग्रेड हो सकते हैं। तो एक आप इसको क्या बोल सकते हो कि कोई एक क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ही होता है, कोई ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन ही होता है जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। उससे एक्सेस आप दे दोगे तो फिर फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस होएगा ही नहीं या फिर नॉर्मल रेट पे चलेगा। मतलब ये क्या था इसका, ये इसका पीक पॉइंट था, इससे ज्यादा फोटोसिंथेसिस अब नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यही चीज लिखी है गाइस। नेक्स्ट आप क्या देख रहे हो, एट हायर इंटेंसिटीज द रेट डज नॉट फर्दर इंक्रीज बिकॉज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। अब यहाँ पे अदर फैक्टर्स लिमिटिंग हो जाएगा, इसीलिए रेट नहीं बढ़ रही है। लाइट सैचुरेशन अकर्स एट गाइस, एवरी वन ऑफ अस नो कि 10% से ज्यादा सनलाइट प्लांट्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 10% पे प्लांट सेचुरेट हो जाते हैं कि भाई अब इससे ज्यादा लाइट मैं नहीं एब्जॉर्ब करूंगा, इससे ज्यादा सनलाइट मैं एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हूं। हाई इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट ब्रेक्स डाउन क्लोरोफिल, जैसे मैंने बोला फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस और डिक्रीज हो जाएगा, ना कि बढ़ेगा। फाइन। तो गाइज ये लाइट के बारे में था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से CO2 का कॉन्सेंट्रेशन एज ए लिमिटिंग फैक्टर एक्ट करता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ गाइस, तो क्या कह रहा है कि C4 प्लांट, जैसे मैंने अभी भी बोला, कम CO2 दोगे तब भी फोटोसिंथेसिस करेगा, एफिशिएंसी ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो सेम कह रहा है कि C4 प्लांट्स जो है वो 300 ml है ना इनवर्स पे ही क्या कर लेते हैं गाइस, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी C3 की बात करूं गाइस, तो इनको कॉन्सेंट्रेशन 400, आप देख रहे हो 450 ml इनवर्स, इतना चाहिए, इतना CO2 चाहिए, तब जाके ये क्या करेंगे, इतना मिलीलीटर चाहिए तब जाके भाई ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। मतलब इनको ज्यादा CO2 चाहिए और इनको कम CO2 चाहिए। Thus current availability of CO2 level is limiting to the C3 plant, ठीक है। अगर C3 को ज्यादा नहीं दिया, CO2 कम दिया, तो वो नहीं कर पाएंगे फोटोसिंथेसिस, तो वहां पे C3 प्लांट में CO2 भी क्या हो जाता है, लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। अब देखो, ड्यू टू रिस्पॉन्स टू हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन C3 प्लांट शो इंक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस एंड हाई प्रोडक्टिविटी। दिस फैक्ट इज यूज्ड फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स। कुछ ग्रीन हाउस क्रॉप्स को क्या करते हैं गाइस, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे ना, तो जैसे टमेटो हो गया, बेल पेपर हो गया, ये सब CO2 इनरिच्ड इन्वायरमेंट में ग्रो किया जाता है। मतलब इनको शीशे के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो इनकी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, हाँ जी।
चलिए गाइज, नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर में अगर हम बात करें गाइज, तो हम टेम्परेचर में क्या कह रहे हैं कि जो डार्क रिएक्शन है, क्योंकि एंजाइमेटिक है, रुबिस्को एंजाइम का यूज आप देख रहे हो इसमें, तो ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड होगा, डार्क रिएक्शन। लेकिन लाइट रिएक्शन में कोई भी एंजाइम नहीं है, तो जब लाइट रिएक्शन में कोई एंजाइम नहीं है गाइस, तो ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड नहीं होगा। तो यहीं पे यही चीज कह रहा है गाइस कि डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड एंड इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन लाइट रिएक्शन इज वेरी लेस। तो टेम्परेचर किसमें एज अ लिमिटिंग फैक्टर रिएक्ट कर सकता है, एक्ट कर सकता है गाइस? डार्क रिएक्शन में। एंड द लास्ट वन इज गाइस वाटर। वाटर स्ट्रेस देखते हो, वाटर स्ट्रेस कब होता है? वाटर की कमी हो जाती तो स्टोमाटा क्लोज कर जाता है। क्यों भाई? ताकि और एक्सेस जो वाटर है लॉस ना हो सके। तो यही चीज कह रहा है, देयरफॉर हेंस रिड्यूसिंग द CO2 अवेलेबिलिटी। Water stress also wilts leaves, thus reduce the surface area of the leaves and their metabolic activity. अगर वाटर कम होगा, स्ट्रेस होगी वाटर की, तो लीव्स पत्ते ऐसे मुड़ जाएंगे, ठीक है। और पत्ते मुड़ जाएंगे तो आप क्या देखोगे कि अब वाटर की लॉस नहीं होगी, स्टोमेटा क्लोजर हमको दिख रहा है। तो गाइज दीज फोर वर द एक्सटर्नल एक्टिविटीज, और दी आप कह सकते हो एक्सटर्नल एजेंट्स, जो क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। चलो, सो गाइज विद दिस, इसके साथ हम आते हैं आज के टॉपिक पे। वील कम टू द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक और टुडेज डिस्कशन, टुडेज चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, है ना, विद अ नए सिरे से नया चैप्टर शुरू करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस गाइज, ठीक है। सो डू यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन गाइज? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना आई विल एंड द सेशन नाउ। ओके बेटा, चलो बाय कह रहा है ये। फाइन, एवरीवन एल्स प्लीज गिव मी अ थम्स अप। चलो, तो guys that's all for today. Thank you and have a nice day. See you all soon. Hope you like this session. Bye bye, bye bye, bye bye, take care, bye bye. Thank you all of you.